السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رسپین اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے کہ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ریاست تامل ناڈو میں ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے ہلاک ہو گئے ہیں. ہیلی کاپٹر گرنے سے ان کی اہلیہ اور اعلیٰ فوجی افسران سمیت 13 افراد مارے گئے. بھارتی ایئر فورس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ہیلی کاپٹر تباہی کے پیچھے تخریب کاری کا خدشہ. باقی گروپ کے رکن کو حراست میں لیا گیا ہے. بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ہلاک ہو گئے. بپن راوت اپنی اہلیہ اور فوجی افسران کے ساتھ ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج نیلگری جا رہے تھے کہ کوہ نور کے قریب جنگل میں ان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. بپن راوت اور دیگر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے. واقعے میں صرف گروپ کیپٹن ورون سنگھ زندہ بچے ہیں جن کا علاج جاری ہے. بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ اور 11 فوجی جوان و افسران ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے. ان کی موت بھارتی مسلح افواج اور ملک کے لیے بڑا نقصان ہے. فوجی ہیلی کاپٹر کو تامل باغیوں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک باغی گروپ کے رکن بین جم موہن کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں. انڈین فورس نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے انکوائری کا حکم دے دیا. جنرل بپن راوت بھارتی فوج کے 27ویں سربراہ تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں چیف آف ڈیفنس مقرر کیا گیا تھا. وہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس تھے. بھارتی جنرل بپن راوت کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی. انہی کے دور میں بھارت نے LOC پر سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا تھا. بالاکوٹ پر پاکستان کے خلاف بھارتی ایئر اسٹرائیک کا شوشہ چھوڑا گیا. یہی نہیں بلکہ بپن راوت نے کشمیر میں ظلم کے پہاڑ بھی توڑے. جنرل بپن راوت کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. ستمبر 2016 میں وہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے جب بھارت نے LOC پر سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا. فروری 2019 میں بالاکوٹ میں پاکستان کے خلاف بھارتی اسٹرائیک کا شوشہ چھوڑا گیا. اس وقت بھی بھارتی فوج کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی. 2016 میں 27ویں بھارتی آرمی چیف بنے تو 2 سینئر افسران کو سپر سیڈ کیا گیا. 2019 میں پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنے تو مودی حکومت کو آئین میں تبدیلی کرنا پڑی. بپن نے کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑے. بحیثیت کرنل اڑی اور جموں کشمیر کمپنی کی سربراہی کی. اروناچل میں شمالی سیکٹر میں 11 گورکھا رائفلز کی کمان سنبھالی. بریگیڈیئر بن کر سوپور میں راشٹریہ رائفلز کی کمان سنبھالی. جنرل بپن راوت کی موت پر پاکستان کی تمام عسکری قیادت نے ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف اور ایئر چیف نے بپن راوت اور ان کی اہلیہ اور دیگر بھارتی فوجیوں کی موت پر اظہار تعزیت کیا. بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی ہلاکت پر بھارت کی سیاسی و عسکری قیادت صدمے کا شکار ہے. بھارتی وزیر اعظم جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد کابینہ کمیٹی برائے سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیا. رپورٹس کے مطابق حادثے کے بعد کی صورتحال پر کل باضابطہ بیان جاری کیا جائے گا. نریندر مودی، صدر رام ناتھ اور آرمی چیف MM نروانا نے جنرل بپن راوت کی ہلاکت پر اپنے گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. ضلع شوپیاں میں قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک کشمیری کو شہید کر دیا. قابض فوج کا سری نگر، شوپیاں، پلوامہ، کپواڑہ سمیت متعدد علاقوں کا محاصرہ جاری ہے. گھر گھر تلاشی کے نام پر کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی. بھارتی فوج نے بچوں، خواتین اور بزرگ افراد کو سخت سردی میں گھروں سے باہر نکال دیا. درجنوں نوجوان گرفتار کر لیے گئے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں. اگر مغرب نے افغانستان کے حوالے سے اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے.
Pakistan was not the one that brought the war to Afghanistan. Pakistan is the principal victim of this war. There was always a failing policy. The only country that kept saying you will not find a military solution to this problem was Pakistan. Our advice was not heeded to. We kept saying negotiate from a position of strength. We weren't listened to. We were blamed. The way the international community is approaching Afghanistan, it's headed for a collapse. And if it does, we are going to hurt in Pakistan. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल, इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत की और मुल्क से दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के अज़म का इयादा किया। फोरम ने कहा कि तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासिर के लिए कतई तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि खतरात से निपटने के लिए सरहदों की कड़ी निगरानी की जाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की जरूरत है। आर्मी चीफ ने खतरे से निपटने के लिए हर मुमकिन अंदाज में चौकन्ना रहने पर जोर दिया। सिंध असेंबली से पास होने वाले बल्दियाती बिल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नया बल्दियाती कानून माजी के कानून से बहुत ज्यादा बेहतर है। कराची के अवाम मुत्तहिदा कायद के तर्ज सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है जल्द अपने बल्दियाती बिल को मंजूर कर लेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध को एनएफसी अवार्ड का हिस्सा मिलना चाहिए। कराची में मैंडेट मिला तो अवाम को बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। वज़ीर आलम मुराद अली शाह ने कहा गवर्नर सिंध ने बिल वापस कर दिया, लेकिन बल्दियाती कानून को मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। नया कानून साजी हुकूमत सिंध की तरफ इस वक्त हो रहा है। जो एवोल्यूशन बल्दियाती निज़ाम का है वो पिछले निज़ाम से लोकल बॉडीज को ज्यादा कैपेसिटी दे रहे हैं। इनको लग पता जाएगा जब बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं कि इस शहर के और इस सूबे के अवाम भी इस किस्म की सियासत अल्ताफ हुसैन की सियासत को रद्द कर चुके हैं, रद्द करते हैं और इलेक्शन डे पे रद्द करेंगे। जो हमारा सूबा का शहर है एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हमें दिया जाए। अगर हमें बस अपना शहर मिले, उस शहर के साथ जो हम कराची में काम करके दिखा सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। कराची के अवाम देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क है और इंशाअल्लाह ताला जब वो हमें मैंडेट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्टेड निज़ाम होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद रिजल्ट्स दिखा सकेंगे। गवर्नर साहब ने उसको वापस कर दिया। वो और बात है कि 30 तारीख की डेडलाइन चली गई और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम दोबारा इस पे काम करते रहेंगे जब तक इलेक्शन में तो अभी टाइम है। हम दोबारा बैठना चाहते हैं। आपकी अभी कोई तजावीज़ हैं तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे। कानून पास होने के बाद भी कोई तजावीज़ आती है हम उनको भी कंसिडर करेंगे। कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। कई रोज से ओपीडीज मुकम्मल बंद हैं। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत सिंध मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खुमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। जानी टाउन से आए हुए हम लोग अभी गए थे टोकन नंबर लेने, तो चाचा बोल रहे भाई देखो डॉक्टर पता नहीं 1 हफ्ते से हड़ताल है, आएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ आए तो कोई भी नहीं है। लोग 1 घंटे से यहाँ पर खड़े हुए अभी तक कोई आया ही नहीं है पर्ची देने के लिए, तो लाइन में ही खड़े हुए, ख्वारी ही है। हड़ताल तो डॉक्टर ने किया, अपना पता नहीं बोले हम मसीहा है और यहाँ पेशेंट का उनको फिक्र ही नहीं है। पेशेंट यहाँ बैठे, ये बच्चा हम लेके आए सुबह। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चौंका देने वाली रिपोर्ट से सर्वे रिपोर्ट में करप्शन के निजाम का पर्दा चाक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में पुलिस का पहला और अदलिया का दूसरा नंबर है। हुकूमत के एहतसाब के अमल पर भी उंगलियां उठा दी गयी। सर्वे रिपोर्ट में 66% से ज्यादा शहरियों ने एहतसाब को जानिबदार करार दिया, जबकि सर्वे में 92% शहरियों ने मौजूदा दौरे हुकूमत में बेपनाह महंगाई का शिकवा किया। शहरियों ने महंगाई की वजह करप्शन, नाअहली और एहतसाब के कमजोर निजाम को करार दिया है। नए पाकिस्तान में करप्शन का वही पुराना निजाम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पर्दा चाक कर दिया।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के मुताबिक करप्शन में पुलिस का पहला और अदलिया का दूसरा नंबर है। 41.4% लोगों की राय में पुलिस और 17.4% की राय में अदलिया में करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हुकूमत के एहतसाब के अमल पर भी उंगलियां उठा दी गईं। 66.8% शहरियों ने एहतसाब को जानिबदार करार दिया। 33.2% की राय में एहतसाब का अमल गैर जानिबदार है। शहरियों से सवाल पूछा गया कि क्या आप पीटीआई हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन हैं, तो 85.9% लोगों ने एहतसाब के निजाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। 14.1% शहरी मुतमईन दिखाई दिए। गुज़िश्ता 3 हुकूमतों में महंगाई के मवाजने के सवाल पर 92.9% लोगों की राय में मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा महंगाई है। 4.6% के मुताबिक लीगी हुकूमत और 2.5% के मुताबिक पीपल्स पार्टी की हुकूमत में महंगाई थी। जब लोगों से महंगाई की वजूहात जानने का सवाल हुआ तो 50.6% की राय में हुकूमत की नाअहली के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। 23.3% की राय में महंगाई की वजह करप्शन है। एक और सवाल के जवाब में 51.9% लोगों ने एहतसाब के कमजोर निजाम को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। 34.6% शहरियों ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो रोजाना की बुनियाद पर करप्शन केसेस की समाअत करे, जबकि 40% ने कहा कि सजाओं में इजाफा किया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में यह भी सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में आपकी आमदन में इजाफा हुआ या कमी, तो 85% का कहना था कि उनकी तनख्वाह 3 साल में कम हुई, जबकि 14% शहरियों की आमदन में इजाफा हुआ। पीटीआई हुकूमत आने के बाद मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी ने सिंध की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात की है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हर साल आती है, वो इस तरह की रिपोर्ट पर यकीन नहीं करते। कहा सब इदारों को ठीक करना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत आने के बाद करप्शन में उसकी तरक्की हुई है। अब अगर वो कह रहे हैं कि जी अदलिया में और पुलिस में ज्यादा करप्शन है, तो ये सिर्फ सूबा सिंध के लिए बात उन्होंने नहीं की है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि इस मुल्क में इदारों में करप्शन नहीं है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। जो सारी सूबाई हुकूमतें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या और जिन इदारों का उसमें जिक्र किया गया है, उन सबको ठीक करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की जो करप्शन परसेप्शन एक रिपोर्ट आती है वो हर साल आती है और हर साल वो मुख्तलिफ सर्वेस करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी कर देते हैं। अब नॉर्मली मैं सच्ची बात है इस किस्म की रिपोर्ट पर ज्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये आमतौर पर हवाई होती है। साबिक चीफ जज क्रिकेट बल्तिस्तान राना शमीम का नाम PNIL पर डाल दिया गया। मकसद राना शमीम को बाहर जाने से रोकना है। राना शमीम का नाम अभी तक ECL में नहीं डाला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज का सही वक्त तय न करने वाली अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत क्या गिराएगी। हमने राना शमीम को PNIL पे डाला है, कहीं ये भाग ना जाए, और बाकी ECL के लिए मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा। मैं PDM से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप 23 मार्च की बजाय 30 मार्च को आएं। यहां आपका रोजा खुलवाना पड़ा आगे और आपका सहरी का इंतजाम करना पड़ा, तो मैं अपनी जेब से करूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, कंपनी की मशहूरी के लिए इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है, कोई इनका इत्तेफाक नहीं है। जो अपोजिशन तहरीक चलाने की तारीख का भी सही इंतखाब नहीं कर सकती, वो इमरान खान को नहीं गिरा सकती। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में जाली पुलिस मुकाबले में जख्मी यासिर का बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। यासिर के मुताबिक वो अरसलान के साथ कोचिंग सेंटर से वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार सादा लिबास अहलकारों ने फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी और अरसलान जाँ बहक हो गया। हम कोचिंग से वापसी में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ न्यूज 0 मीटर 125 बाइक थी, कली शोरूम से निकाली। जैसे आए वो लोग अचानक से गाड़ी जाम की, फायर स्टार्ट की। पहली गोली मुझे लगी, दूसरी बच गई, तीसरी असल खान को लगी, वो गिर गया उल्टा। मेरे पीछे फायर की, मैं उसके लिए रुका लेकिन वो उल्टा लेटा हुआ था, मतलब कि गिरा हुआ था। मैं उसके लिए रुका मगर उन लोगों ने दूसरी मैगजीन डाली और मैं फिर वहाँ से भाग निकला। कोई हौसला वासला नहीं, पढ़ने गए थे, सिर्फ एक ही था, उसने शर्ट मतलब कि शर्ट में पैंट में था। मेरे साथ बाइक थी और वो मेरे से गिर पड़ा, इसलिए मैं वहाँ से निकल।
सानही सियालकोट की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, जिन्हें आज सुबह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमान को CCTV और मोबाइल कॉल डाटा की मदद से गिरफ्तार किया। सानही में अब तक 34 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जिम्मेदार कानून के तहत सख्त सजा के हकदार है। कराची के इलाके सुराब गोट में पानी की किल्लत से तंग मकीनों का 3 रोज से एहतजाज जारी है। मुसाहिरीन ने मसला हल न होने की सूरत में कल से सुपर हाईवे ब्लॉक करने का भी ऐलान कर दिया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस। बिल्कुल सुराबकोट का इलाका जहाँ पर 3 रोज से पानी की बंदिश के खिलाफ जो वो इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, उस पानी के करीब जो वो बाकायदा तौर पर एहतजाजी कैंप लगाया गया है, जहाँ पर यहाँ के इलाके के लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में जो वो 3 रोज से बैठे इसी तरीके से जो वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे, कितने रोज से एहतजाज जारी है, क्या मुतालबात है आप लोगों के? यहाँ जो वो किया है पानी का मसला है, हमारा इशू है सिर्फ पानी। 9 महीने हो गया कि जो सिंध की पानी के जिम्मेदार इदारा है वजीर बल्दियात, सब 3 रोज हो गए, हुकूमत ने कुछ नहीं किया अभी तक, कोई नहीं अभी तक जो है ना इन्होंने कोई वो नहीं किया, और अभी तक वो जो है ना इनको होश के नाखून नहीं ले रहा है। आप बताइए इतने अरसे से पानी गायब है, गुसर बसर कैसे होता है आप लोगों का? गुसर बसर यही है कि कारा पानी है, कारा पानी पी भी रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो 15,000 रुपए का हम टैंकर लेते हैं। इनके मुतालबात नहीं सुने गए तो मेन जो सुपर हाईवे का रोड है वो ब्लॉक किया जाएगा और इनके मुतालबात की मंजूरी जो है एहतजाज का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रहिए।